Hi students, I am Dr. Anurag Agrawal and this is OSN Academy. Today, I am going to take a session on one of the most relevant topics of paper 1 and that is teaching aptitude. Students, teaching aptitude एक वो यूनिट है जिसमें स्टूडेंट्स हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं because the direct answers are not able to calculate by the students and even the assistant professors, the teachers or the scholars who have become teachers in the universities and colleges and they wish to excel in their aptitude portion of teaching, they may go for these classes, they may learn from OSN Academy's classes and yes, for UGC net, it was something which is very astonishing and very useful for all of us. So students, let us start with the teaching aptitude. स्टूडेंट्स, फिल कॉलिंस का शायद आपने नाम सुना हो. फिल कॉलिंस ने कहीं पे लिखा है कोट एंड कोट में दैट इन लर्निंग यू विल टीच एंड इन टीचिंग यू विल लर्न. इसका हिंदी में क्या तात्पर्य हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ कि जब हम लर्न करते हैं तो हम टीच करते हैं और जब हम टीच करते हैं तो हम लर्न करते हैं. हाउ ट्रू इट इज. डियर स्टूडेंट्स, टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट, I feel it is one of the most uncomplicated and a challenging unit. Why? Because it seems easy to grasp and understand the concepts. But when it comes to solve the questions, it becomes very challenging that all the 4 options which are given to you in the examination, they all seem to be perfect. आपको ऐसा लगता है कि वो सारे आंसर्स करेक्ट हैं बट ओनली वन ऑफ देम इज करेक्ट एंड दिस इज द ओनली यूनिट ऑफ पेपर 1 वेयर स्टूडेंट्स फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी. व्हेन आई वाज आल्सो अ स्टूडेंट लाइक यू, आई आल्सो फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बट ड्यू टू माय गुरुज, ड्यू टू द मेंटरशिप ऑफ पेपर 1 व्हिच आई टुक, I could clear this examination well. So I also want our students to take all the benefits from OSN paper 1 classes too. And you know students, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि you have to understand this topic by heart and not by mind. इसको आपको दिल से समझना है, दिमाग से नहीं. And until and unless you will not learn the things by keeping an attitude of a teacher, of a professor in mind. आपको ये सोचना है कि हम एक टीचर हैं, हम एक प्रोफेसर हैं, हमें बच्चों को पढ़ाना है. तब हमारे अंदर क्या चीजें होनी चाहिए जो हम इनकलकेट कर सकते हैं, जो हम बच्चों को बता सकते हैं. You will not be able to solve those questions which come in the examination. And I am 100% sure students, 100% श्योर कि जब टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, हर आदमी, हर बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है. अब क्या करूं? ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है. सो इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चंस, टू गेट द राइट आंसर्स, you actually need to understand the following topics of teaching aptitude in detail. So let us come to those topics. Let us come to those points where the syllabus of teaching aptitude you have to cover. First, students, there is a topic known as teaching, where you have to study the concepts, the assumptions. See, यहाँ पे मैंने लिख दिया है concepts and assumptions. Unless and until students, the concepts of teaching and the assumption based questions are not solved properly in your heart and mind, you will not be able to give the right answer. The second is teaching, the nature of teaching and what are the objectives. क्या उसका objective होना चाहिए. Then we have the characteristics and the basic requirements. We will study the features. The characteristics को features भी कहते हैं और इनकी क्या requirement होती है, क्या जरूरतें होती हैं, वो हम पढ़ेंगे. Then we have the steps of teaching. Steps of teaching, 1, 2, 3, 4, everything in life has to be learned by steps. जब बच्चा पैदा होता है, देखिए माँ क्या करती है, स्टेप वाइज उसको ग्रो करती है. हम लोगों के यहाँ भी जब बच्चे एडमिशन लेते हैं, हम पढ़ाते हैं, चाहे IAS हो, चाहे UGC नोट हो, स्टूडेंट को बेसिक से ले चलते हैं, स्टेप से ले चलते हैं. द सेम थिंग हियर दैट यू हैव टू गो विद स्टेप्स ऑफ टीचिंग. देन द लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स.
लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि जो आप लर्नर हैं उनके क्या फीचर्स होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एंड अकॉर्डिंगली द टीचर हैज टू make a suitability or the adaptability of the learner's characteristics. Fine, ये देखिए. Then you have the factors affecting the teaching. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो टीचिंग को इफेक्ट कर सकते हैं? Then we have the method of teaching. Then the style of teaching. The style of teaching क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने बहुत सारे टीचर से, प्रोफेसर से बचपन से लेकर आज तक पढ़ा होगा, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे. देयर आर सो मेनी टीचर्स, सो मेनी मेंटर्स गाइडिंग यू एट यूट्यूब चैनल्स ऑल्सो, एंड इन योर लाइफ ऑल्सो, इन योर सिटी ऑल्सो, एंड इन द फिजिकल क्लासेस ऑल्सो, इन योर यूनिवर्सिटी ऑल्सो. एंड हर टीचर की स्टाइल अलग होती है स्टूडेंट्स, एंड all the teachers may be good teachers but the style differ. याद करिए, हम लोग जब यूनिवर्सिटी में होते हैं, छोटे होते हैं, तो हम कहते नहीं है कि हम इस यूनिवर्सिटी में इस प्रोफेसर की क्लास करेंगे, अरे यार मैं उस क्लास में नहीं जाऊंगा, बहुत बोरियत होती है, आई विल गो टू दैट क्लास, इट इज रियली वेरी इफेक्टिव. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच बेसिकली डिपेंड ऑन द स्टाइल ऑफ टीचिंग. What style suits anybody? So you have also to keep in mind the styles of teaching. Then you have the teaching aids. टीचिंग एड्स क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में, हाईटेक जमाने में, एजुकेशन के जमाने में, देयर आर सो मेनी एड्स थ्रू व्हिच नाउ वी आर टीचिंग. This is a technical era. You are sitting there and I'm teaching live or through the video classes sitting at home through these technical aids. एक जमाना था जब we had no aids. We had only a classroom, a duster and a chalk. So you have to also understand the teaching aids which you can take benefit and to teach. Then you have the evaluation system. Fine. So evaluation system, कैसे हम evaluate करेंगे चीजों को? Now students, in the short system, I have told you all these 10 methods. Now to get more into the detail and to get more, make you more convinced as per that highlights are concerned, I'll again try to manage you to make you understand the benefits and the style and the concepts and the assumptions of teaching. That is our point number 1. See, students, टीचिंग जो मेथोडोलॉजी होती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट का पार्ट प्ले करती है. किसी की टीचर एजुकेशन में कोई इंस्ट्रक्टर है, कोई ट्रेनर है, उसके लिए टीचिंग मेथोडोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And if you are a professor, if you are that professor in the teaching domain, then in that realm, in that field, it is very very important to understand. And there are many various definitions of teaching. बहुत सारी teachings की definition students हो सकती हैं. Teaching aptitude is made of 2 words. देखिए, 2 शब्दों से बना है teaching aptitude. It's made of 2 words. Teaching means to teach and ability means to be able to teach. बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट्स, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि टीचिंग का मतलब होता है हमें पढ़ाना है, और एबिलिटी का मतलब होता है कि हम इस काबिल हैं कि नहीं कि हम पढ़ा सकें. सो स्टूडेंट्स, दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ टीचर, टू बिकम अ प्रोफेसर, एज not only it checks your ability, it checks how efficient you are, how effective you are with your students. The more efficient you are, the more effective you are, the more the students will be able to impart, you will be able to impart that level of knowledge which goes into their subconscious to get them inculcated with that level of knowledge. And many people who mistakenly, you can say, think that anybody can teach. कोई भी पढ़ा सकता है. बहुत लोग इस प्रकार से मिस्टेक कर देते हैं कि कोई भी पढ़ा सकता है. And we rarely hear of untrained doctors, engineers, architects, etc. But hear about what makes teaching a profession. टीचिंग क्या ऐसा है जो टीचिंग को एक प्रोफेशन बनाता है, लाइक अदर्स अनट्रेन्ड टीचर्स. देयरफॉर नॉट एवरी टॉम, डिक एंड हैरी कैन arrogate to themselves the functions of teaching without understanding, without undertaking the requisite, the proper, the mathematical design, the significance
and the articulation. There can be many synonyms, words which can be used to make you understand that what teaching actually is. Teaching is not basically only simply the presentation of new skills, the presentation of knowledge to the students, to the trainees. It is also not the mere transferring of what a teacher or an instructor knows into the hands of the minds of the trainee. हमें जो आता है हम आपको वो नॉलेज इम्पार्ट कर देते हैं. इट इज नॉट ओनली द ट्रांसफरिंग ऑफ व्हाट द टीचर or the instructor knows, but effective teaching means that there are certain things. बहुत सारी चीजें बच्चों ऐसी होती हैं which the teacher must do, जो टीचर को करना ही करना है, and other things which the trainee must also do to increase the chances of learning taking place. We at times through the online platform, through our physical classes, do a lot of things for the students so that, अच्छा इस तरीके से आपको समझ में नहीं आया, now I will do this thing. So those things are actually known for learning, for making the trainee learn, and for that a teacher has to plan his or her activities in order to ensure that the trainees, that the students can acquire that desirable knowledge, that desirable skills which you have and which you want that they should also know. And in this process, students, it is very, very important to know the product. Product means हम क्या पढ़ा रहे हैं, what actually I am teaching. For example, if I am teaching today aptitude, this is my product. So I have to be having a command over this subject, over this product, to make you understand, to impart that knowledge level, and to make you feel, yes, that this is very, very significant, and I really love the way sir has taught. तो जब तक ये आपके मन में नहीं आएगा, तब तक वो प्रेजेंटेशन, वो स्किल, वो टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं आ सकती है. सो we do not focus on the product alone. हम केवल प्रोडक्ट पे ही फोकस नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, बट द मीन्स, एंड द मीन्स बेसिकली जो एंड रिजल्ट है, दैट इज बेसिकली मोर क्रूशियल. अगर हमने पढ़ाने के बाद अगर हम आपसे पूछे बेटा आपको समझ में आया, आप कहें नहीं सर, देन द एंटायर प्रोसेस फेल्स. एंड अगर आपने कहा यस सर, आई लव योर लेक्चर, आई अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग, एंड it was a fantastic class, then I will be happy and you will be happy. This is called both way communication. हम बोले आप समझें, आप बोले हम समझें. That is a two process of communication, and communication is never one way, it is always two ways. Now I am going to tell you that what is known as focus of teaching. Teaching जो है वो फोकस करती है on the three fundamental elements और प्रोसेस पे वो फोकस करती है, एंड दीज आर द कॉग्निटिव, द साइकोमोटर एंड द इफेक्टिव प्रोसेसेस. हम इस बात को समझेंगे, एंड आई एम श्योर यू विल लव टू अंडरस्टैंड दीज थ्री प्रोसेसेस. एंड ऑल दीज थ्री प्रोसेसेस स्टूडेंट्स, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो साइकोमोटर हो, चाहे वो एक्टिविटी प्रोसेस हो, ऑल दीज थ्री आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. फाइन. सबसे पहले हम समझेंगे स्टूडेंट्स कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है. सबसे पहले देखिए कॉग्निटिव प्रोसेस हम समझते हैं. सी द कॉग्निटिव प्रोसेस बेसिकली क्या है कि इट इज रिलेटेड टू, किस चीज से रिलेटेड है स्टूडेंट्स, ये बताइए. इट इज रिलेटेड टू एक्विजिशन, इट इज रिलेटेड टू एक्विजिशन, रिलेटेड टू नॉलेज, एंड इट इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्विजिशन ऑफ न्यू आइडियाज. कहां से नए आइडियाज आ रहे हैं. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट इट अपील्स, कॉग्निटिव प्रोसेस जो है कहां अपील करता है, अपने माइंड को, इंटेलेक्ट को. इट अपील्स मेनली टू अवर माइंड और इंटेलेक्ट, दैट इज ब्रेन. एंड फिर हम क्या करते हैं कि हम न्यू आइडियाज को एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन करते हैं और रीऑर्गेनाइज करते हैं ऑफ एन एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ आइडियाज. बहुत सारी बॉडी ऑफ आइडियाज होती है, उसको हम ऑर्गेनाइज की जगह रीऑर्गेनाइज करते हैं. और ये कौन सी काबिलियत है, ये कौन सी एबिलिटी है बच्चों? इट इज द एबिलिटी टू डिटरमिन द इंटरकनेक्शन बिटवीन टू और मोर थिंग्स. दो से ज्यादा चीजों का इंटरकनेक्शन को डिटरमाइन करती है कॉग्निटिव प्रोसेस. I am sure you must have understood it very clearly because I have made you understand in a very, very simple manner.
नाउ द सेकेंड इज द साइकोमोटर प्रोसेस। बच्चों, साइकोमोटर क्या होता है, शायद आपने पहली बार ये नाम सुना हो और बहुत सारे बच्चे शायद जानते भी हों। साइकोमोटर में क्या होता है कि इसमें हम वो चीज रिफर करते हैं टू स्किल्स विच इज एक्वायर्ड थ्रू द टीचिंग और द लर्निंग सिचुएशन। और ये जो स्किल्स होती हैं, दे आर रिलेटेड टू हाउ वी लर्न, how we coordinate and use our hands, our head, our legs and other body parts। ऐसे सिंपल से समझिए कि जब हम, जिसको हम कहते हैं जेस्चर, देखिए एक वर्ड होता है जेस्चर। हम जब किसी से बच्चे नाराज होते हैं तो हम अपना चेहरा, बॉडी लैंग्वेज कैसा बनाते हैं। When I love somebody, then what we make. When we are trying to hit somebody, then what we do. When we are at ease, then what we do. So in our family, in our friend circle, and in the entire world, wherever we are exposed, we understand so many things by interacting the people in the society, by moving their hands, legs, eyes, bodies। क्यों कहते हैं नहीं नहीं वहां मत जाना, वो बड़े नाराज हो रहे हैं? क्यों समझ जाते हैं हम लोग कि अगला आदमी देखिए वो चल रहा है, उसमें ऐसा फीलिंग है? Because these gestures, they basically tell a lot of things, and we can manipulate things using our psychomotor abilities। Psychomotor abilities होती हैं वही जो बॉडी जेस्चर से आती हैं, and by using the hands manually। Why? When we are teaching, अब हम जैसे मान लीजिए आपको पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अपना हाथ पैर और ये ना चलाएं, आपको ऐसा लगता है कि क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? और अगर ऐसा कोई पढ़ा रहा होता है तो देखिए हम लोग थोड़ा सा वो नेचुरल नहीं लगता, मतलब वी आर नॉट कनेक्ट। So it moves automatically, it moves, and that is the body posture which plays a vital role in the learning process। And the last is the effective process। See, is the effective process। और effective process क्या होता है स्टूडेंट्स? ये इसका मतलब होता है feelings, इसका मतलब होता है attitudes, and our feelings, our attitudes reflect the values we are associated with। Some values are very positive, some are very progressive, while others may be even negative। बहुत ऐसा नहीं है कि केवल पॉजिटिव हो, केवल प्रोग्रेसिव हो, it can even be negative, and it can even be एक वर्ड है, it can be archaic। And effective teaching seeks to promote positive values, to promote positive attitudes, और उसी समय while at the same time धीरे धीरे ग्रेजुअली लेकिन सिस्टम से सिस्टमैटिकली chipping at those which are negative and disruptive। करते करते पॉजिटिव को बढ़ाते एटीट्यूड को प्रून करते धीरे धीरे क्या करते हैं हम, नेगेटिव को, डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड्स को उसको हटाने लगते हैं, क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। एंड एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट इन अनदर सेंस टू। नाउ आई कम टू द मेन पॉइंट, मेन क्वेश्चन which everybody must be waiting for, and many questions have been coming in the examination। what should a good teacher must do? एक अच्छे अध्यापक को, एक अच्छे टीचर को क्या करना चाहिए? अब इसमें तो पूरी रामायण भी आप लिख सकते हैं और वो खत्म ना हो कि एक अच्छे टीचर को हम कैसे जॉट डाउन कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बिकॉज एक अच्छे टीचर के अंदर तो बहुत सी काबिलियत होनी चाहिए, बट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू and for making you understand, there are some things, some points which you have to remember। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपका जो कंटेंट है, जो आप लेसन पढ़ा रहे हैं, that has to have a very very clear understanding of the content embodied in the lesson। जो देखिए हम सबसे इंपॉर्टेंट आपको मार्क कर देते हैं कंटेंट। अगर आपका कंटेंट आपको क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स, then you cannot be a very good teacher। Why? Because a clear understanding of what you are going to teach, what you are going to teach in that lesson has to have be very clear। That is a compulsory factor for it। Fine, तो ये लिख देता हूं, clear understanding of the content। Then एक टीचर के अंदर, एक लर्नर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए
इंटरेस्ट डेवलप करने का एक सेंस होना चाहिए इन द सब्जेक्ट मैटर। सपोज करिए आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, स्कॉलर हैं, प्रोफेसर हैं, फिजिक्स के हैं, साइंस के हैं, बायोलॉजी के हैं, तो हम कैसे उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट को डेवलप करें, एंड दोज डेवलपमेंट कैन बी थ्रू द इफेक्टिव क्लास मैनेजमेंट टेक्निक्स। किस प्रकार से हम अपने क्लास को मैनेज करें कि द क्लास शुड लुक वेरी इंटरेस्टिंग एंड द स्टूडेंट शुड इंटरैक्ट एंड दे शुड डेवलप देयर स्किल्स बाय द कंटेंट व्हिच द टीचर इज टीचिंग। सो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तीसरा, स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक टीचर को जो शब्द इस्तेमाल करने चाहिए, जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज का, जो भी मैंने आपको साइकोमोटर समझाया है, विच हैव वेरी कॉमन मीनिंग टू द लर्नर, मतलब उसको आसानी से समझ में आ जाए और टीचर भी उसको समझा ले जाए और उसके लर्नर्स को समझ में आ जाए। अदरवाइज जैसे एक शब्द होता है ऑर्नेट, ऑर्नेट मतलब होता है सजावट वाला। ऑब्सक्यूरिटी एक वर्ड होता है, वन शुड नॉट यूज ऑर्नेट वर्ड्स, वन शुड नॉट यूज द लैंग्वेज और द सेंटेंसेस विच आर यू कैन से फुल ऑफ ऑब्सक्यूरिटी। ऑब्सक्यूरिटी, इसका एक वर्ड और होता है वेगनेस, मतलब थिंग्स शुड नॉट बी वेग, इट शुड नॉट बी ऑब्सक्यूर, इट शुड नॉट बी वेरी एम्बेलिश्ड विद द जेम्स, मतलब आप जब बोलें तो लोगों को डिक्शनरी उठाना पड़े समझने के लिए, तो वहां पे कनेक्टिविटी कट जाती है बच्चों। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ एक टीचर के अंदर एक चीज और होनी चाहिए, ही शुड स्टार्ट टीचिंग द नोन एंड प्रोसीड्स ग्रेजुअली टू टीच द अननोन। पहले तो हम वो पढ़ाएंगे जो नोन है और धीरे धीरे अननोन की तरफ जाएंगे और मोर एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे। उससे होता क्या है कि आपका जो पेरिफेरी है, जो आपका ये लेवल है, ये बढ़ता जाता है, एंड अकॉर्डिंगली योर लर्नर्स, योर स्टूडेंट्स विल आल्सो बी इन अ हैबिट टू मेक देयर होराइजन मोर वाइड, फाइन, एंड these things make learners to act like that, to discover new horizons and new discoveries or knowledge on their own। क्योंकि हर चीज हर बच्चे को आप नहीं पढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपने ABCD पढ़ा दिया, तो बच्चे के अंदर इतनी स्किल आ जानी चाहिए कि वो EFGH खुद से पढ़ करके आए और कहे कि सर हमने इसको कर लिया है, नाउ टेल मी दैट आई वुड लाइक टू आस्क सम ऑफ द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। एंड अ टीचर should always be in a habit to encourage their learners, their students to reproduce in their own words, अपने ही शब्दों में उसको reproduce करे जब हम आपको पढ़ा चुके हों। याद करिए जब हम छोटे होते हैं तो हमारे टीचर्स, हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमें कहते हैं कि ये देखो ये हमने एक ऐसे पढ़ा दिया, लेटर राइटिंग करा दिया, ये बता दिया। हम भी पढ़ाते हैं, तो यूजीसी नेट की हम इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कराते हैं, आईएएस मेंस की कराते हैं, इंग्लिश लिटरेचर की कराते हैं, पेपर 1 की कराते हैं। तब जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों से क्या कहते हैं, नाउ कम अप स्टूडेंट एंड नाउ टेल मी समथिंग अबाउट what I have taught in the Tudor dynasty, what I have taught in this aptitude test, what should a teacher have? Now if a student is able to attain those things and he is able to deliver, then this means that your communication is good, he is able to adopt those things which you have taught. So these things are very important. The encouragement part is very important, and the teacher should always be in a habit to evaluate what has been taught, क्या हम पढ़ा चुके हैं, in order to determine its worth, कि अगर हमें पता है कि हम क्या पढ़ा चुके हैं जिससे उसकी वैल्यू को हम डिटरमाइन कर सकें and correct any false impression. Fine. Now we are going to discuss about the guidelines of teaching. ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। टीचर्स कैसे कैसे इसको आप पढ़ाएंगे, कैसे इसको समझेंगे, गाइडलाइंस क्या है ऑफ टीचिंग, क्योंकि बहुत बड़ा ये एक समुद्र जैसा चीज है। टीचर्स को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए एक एबिलिटी फॉर मेकिंग वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, वेरी डिफिकल्ट मटेरियल सिंपल। हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज कोशिश कर रहा हूं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि एक बहुत कठिन एरिया माना जाता है स्टूडेंट्स के लिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको ट्रेन कर दें, आपके अंदर वो एबिलिटी पैदा कर दें, इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को, डिफिकल्ट चीजों को सरल भाषा में समझा दें। अब वो कितना मैं कर पाता हूं ये तो आप बताएंगे। एनफ फॉर द लर्नर्स, एंड आई एम श्योर the way I am trying to make you successful in attaining that level of scholarshipness in this area, in this paper 1 that is teaching aptitude,
may be successful if I am not wrong. सक्सेसफुल टीचर्स कौन होते हैं बच्चों? वो होते हैं वो डिस्प्ले द फॉलोइंग एबिलिटीज, बहुत सारी एबिलिटीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो अगर उसको फॉलो करते हैं तो वो बहुत अच्छे टीचर हो जाते हैं या वो हो सकते हैं। सबसे पहला, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट। यू हैव टू हैव अ कमांड ओवर योर सब्जेक्ट जो हम पढ़ाते हैं। देन यू हैव टू स्टिमुलेट एंड सस्टेन द लर्नर्स इंटरेस्ट इन व्हाट दे टीच। हमें आपको समय समय पे स्टिमुलेट करते रहना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाते रहना पड़ेगा और अपने लर्नर्स को, अपने स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट बरकरार रखना पड़ेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट बना रहे। हमें वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है जो आप समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इंग्लिश और हिंदी में बात कर रहे हैं और आपको इंग्लिश और हिंदी नहीं आप समझ में आती, तो दैट कम्युनिकेशन फेल्स। सो आई हैव टू यूज अ लैंग्वेज विच यू अंडरस्टैंड एंड we have also to break down the content। जो हम पढ़ा रहे हैं उसको ब्रेक करना है, लेसन्स को ब्रेक करना है, सिंपल तरीकों से ब्रेक करना है, उसको मैनेज करना है, सिस्टमैटिक ब्लॉक्स में करना है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि जैसे मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता हूं अपने बच्चों को, तो बहुत बड़ा है हिस्ट्री, उसको डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में मैं काट देता हूं और सेगमेंट वाइज जब पढ़ाता हूं तो बच्चे कहते हैं हाँ सर, अब नाउ व्हाटएवर यू हैव टॉट क्रोनोलॉजिकली, डेट वाइज, मोनार्की वाइज, हियरार्की वाइज, ऑथर वाइज, पोएट वाइज, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। So this is what is, the breaking down the content with systematic system. Now, what you have also to do, that the teacher, the professor, the learner को क्या करना पड़ता है, उसको अपने से भी पढ़ना पड़ता है, rather than totally depending upon the teacher. You as a student have to do your homework also to attain the mastery of the subject. You have not to depend totally on the teacher. जैसे हम कहते हैं ताली दो हाथ से बजती है, रोटी दो तरफ से सिकती है, तभी जाकर के उसमें रिलेशनशिप में एक मिठास आती है। इसी तरह हम आपको पढ़ाते रहें, आप ना पढ़ें, हम आपको गाइड करते रहें, आप गाइडेंस ना लें, then that again the situation will be out of control. Fine. And a good teacher makes the students, make the learners very creative. उसका माइंडसेट ऐसा हो कि वो क्रिएशन कर पाए, वो कुछ क्रिटिकल एनालिसिस कर पाए, पूरी तरीके से सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके, एंड वॉट एवर इज टॉट उसका वो स्किल्ड हो जाए। एंड अ टीचर should have the ability to review and to take test and confirm, and so that whatever has been taught वो उसकी ability को, टेस्ट को confirm कर पाए। So dear students, I have tried myself best to make you understand this chapter in short, discussing in detail, and now you have to explore the various other aspects of these units. There are various other topics like objective, process, methods, etc., which are associated with this unit, teaching aptitude, which is prescribed in our syllabus of UGC NET 2. And to take our classes, to complete all these topics, you have to stay connected with OSN Academy, and I have tried a very different approach today to teach this unit, because many of the students find difficulty pan-India in this topic, and we shall discuss other topics somewhere in the next parts too. So till then, just subscribe the channel and press the bell icon so that you may always get the notification. And yes, those students who feel good, who feel to be associated with OSN Academy for the subjects like English Literature, Home Science, Commerce, Management, HR, as well as Paper 1, they may take our new classes, new batches for the coming 2021 sessions. Thank you. God bless you, students.